Hello kids, welcome to grade 9 civics class. In today's class we are going to discuss chapter number 6 जो है democratic rights, and आज का जो session है वो है session number 2. So in this session we are going to discuss about what are rights. तो इसके पहले वाले session में हमने देखा कि किस तरीके से if you don't have rights तो फिर क्या क्या problems होती हैं या how your life will be if you don't have rights. So now we will see what are rights. Rights are claims of a person over other fellow beings, over the society and over the government. तो rights वो है जो claims of a person है over other person, other जो fellow beings हैं उनके ऊपर, society के ऊपर and also over the government. तो उनके जो claim है of a person over other human beings और या फिर सोसाइटी या फिर गवर्नमेंट उनको बोलते हैं राइट्स, क्योंकि जिससे आपके पास वो सारी एक राइट्स रहते हैं कि आपको जैसे जेल में डाला गया तो फिर आपके लिए एक लॉयर होना चाहिए या फिर तबीयत ख़राब है तो यू कैन गो टू हॉस्पिटल. तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो आप क्लेम कर सकते हैं किसी दूसरे पर्सन से या फिर सोसाइटी से और द गवर्नमेंट. All of us want to live happily without fear and without being subjected to degraded treatment. तो all of us अगर हम लोग देखें तो everybody wants to live happily without fear कि कोई भी fear ना हो कि country में कोई भी ऐसे दंगे ना हो रहे हो कि your life is in danger. तो we don't want that too, and also without being subjected to जो degraded treatment है कि आपको कुछ कम समझा जा रहा है कि if government is giving something to everybody then you are not getting it. तो इस तरीके से भी नहीं होना चाहिए कि you are being subjected to degraded जो treatment है वो जो सब सारे जो लोग हैं वो equally उनको जो rights हैं वो मिले. For this we expect others to behave in such a way that does not harm us or hurt us. Equally our actions should not also harm or hurt others. तो for this कि हम लोगों को अगर ये दूसरे लोगों से भी हम लोगों को प्रॉब्लम ना हो and we live happily और हमको डिग्रेडेड ना लगे in comparison to others. तो इसके लिए हम लोगों को we should behave we expect others to behave कि वो इन तरीक़ों से behave करें in such a way कि जो हमको नहीं हार्म करता है या फिर does not harm us. तो वो कुछ ऐसा नहीं हो जो हमको प्रॉब्लम करे या हमको नुकसान हो उससे. इक्वली हमारे जो एक्शन है वो भी किसी और को हर्ट नहीं करने चाहिए या फिर किसी और को प्रॉब्लम नहीं देने चाहिए. तो दिस शुड बी बोथ वेज. वी आर नॉट डूइंग समथिंग कि जो किसी और को हार्म कर रही है एंड ऑल्सो दूसरे लोग भी ऐसा ना करें जो हमको हार्म कर रहा है. So a right is possible when you make a claim that is equally possible for others. You cannot have a right that harms or hurt others. You cannot have a right to play a game in such a way that it breaks a neighbor's window. So जो एक right है is a possible when जो आप एक claim करते हैं वो equally possible है सबके लिए. So right is something that everybody will get equally. ऐसा नहीं कि किसी को ज़्यादा है किसी को कम है. If the freedom of speech is a right तो वो सबके लिए है for the whole country. It's not for the कि rich लोगों के लिए है या फिर poor लोगों के लिए नहीं है. तो right जो है जो constitution आपको देगा that constitution will give it to everybody. You cannot have a right जो harm करता है किसी को या फिर आपको harm करता है तो वो एक right नहीं हो सकता है. You cannot have a right to play a game. ऐसा कोई आप right नहीं ले सकते हैं कि उसमें आप कोई ऐसा गेम खेल रहे हो कि जो नेबर की विंडो तोड़ दे and you have a right to do that. कि आप बोल सकते हैं कि नहीं I can do that. तो इस तरीके का भी कोई जो right है वो नहीं होगा because in this right you are harming someone. So this cannot be a right to you. The Serbs in Yugoslavia could not have claimed the whole country for themselves. The claim we make should be reasonable. तो जिस तरीके से we discussed about Serbs in Yugoslavia की जो हम लोगों ने बात करी थी in earlier session जो हमारा first session था उसमें तो यूगोस्लाविया के लोग भी पूरा कंट्री को whole country को claim नहीं कर सकते थे for themselves because they are not giving them right for everybody. जो अल्बेनियन पीपल हैं उनको पूरा सही से right नहीं दे रहे थे. वो जो क्लेम हम लोग करते हैं दैट शुड बी रीजनेबल. तो वो जो क्लेम होने चाहिए वो रीजनेबल होने चाहिए फॉर एवरीबडी.
They should be such that can be made available to others in an equal measure. Thus, a right comes with an obligation to respect other rights. So, there should be the rights हैं, they should be such कि that can be made available to others in equal measure. तो equal measure में वो सबको मिल रहे हैं. Right to speak अगर है कि अगर आप बोल सकते हैं कोई चीज़, तो फिर दैट राइट शुड बी फॉर एवरीबडी. फ्रीडम ऑफ स्पीच जैसा है वो एक ऐसा राइट है कि वो सबको होगा. तो इसलिए वो इक्वल मेजर में मिलेगा सब लोगों को. इट कैन नॉट बी दैट यू कैन टॉक दिस मच 100 minutes एंड somebody कैन टॉक 50 minutes. ऐसा राइट नहीं होगा. दैट विल बी फॉर इक्वली फॉर एवरीबडी. तो इक्वल मेजर में मिलेगा सबको. Thus, a right comes with an obligation to respect other rights. So, राइट एक तरीके से एक ऑब्लिगेशन की तरीके से आता है कि आप दूसरे के जो राइट्स हैं उसको भी रिस्पेक्ट करें, आप उनके भी राइट्स को मानें. बिकॉज द राइट इज़ गिवन टू एवरीबडी, इक्वली दिया जा रहा है. तो जो आपका राइट है वो उनका भी है. तो आप एक दूसरे के राइट में वो दोनों के राइट को आप लोगों को मानना पड़ेगा कि अगर इफ़ I have the freedom of speech to say something, तो other also have the same right. Just because we claim something, it does not become our right. It has to be recognized by the society we live in. तो ऐसा भी नहीं हो सकता कि just because we want to claim something तो वो हमारा right हो जाए. वो जो भी कोई claim है उसको society जो है वो recognize करेगी जहाँ पे हम रहते हैं, then only it can become our right. Every society makes certain rules to regulate our conduct. They tell us what is right and what is wrong. What is recognized by the society as rightful becomes the basis of rights. तो जो भी सोसाइटी है, every society has their own rules. वो अपने rules बनाते हैं. If we live in India, हमारे rules कुछ अलग हैं. If we go to West, उनके rules कुछ अलग हैं. तो जो सारी सोसाइटी हैं उनके रूल्स अलग अलग हैं कि किस तरीके से बिहेव करें, रेगुलेट करें अपने कंडक्ट को. एंड दे टेल अस कि क्या राइट है एंड क्या रॉन्ग है इन दैट प्लेस जहाँ पे हम रह रहे हैं. इट्स नॉट दैट कि जो इंडिया में सही है वो यूएस में वही राइट होगा, या फिर जो यूएस का राइट है वो यहाँ पे भी होगा. तो इट डिपेंड्स वेयर यू आर लिविंग. तो उसके हिसाब से द सोसाइटी, कंट्री, वो उन सब पे डिपेंड करते हैं कि आपके राइट्स क्या होंगे. जो रिकग्नाइज किया जाता है सोसाइटी से एज राइटफुल कि वो सही है जो भी कर रहे हैं आप, वो वो ही बन जाता है जो आपका बेसिस ऑफ राइट्स हैं, वो बनेगा जो भी सोसाइटी को राइटफुल लगेगा वो. That is why the notion of rights changes from time to time and society to society. 200 years ago, anyone who said that women should have right to vote would have sounded strange. Today, not granting them vote in Saudi Arabia appears strange. तो that is why जो notion of right है वो change होता है time to time and society to society. तो कोई भी जो एक right था, if we talk about like olden times, उस time ज़रूरी नहीं है कि वो सोसाइटी को ठीक लगता हो कि दैट विल बी अ राइट एंड वो लोगों को दिया जाए. बट इट कीप्स चेंजिंग. जैसे जैसे आप डेवलप करते हो सोसाइटी, द टाइम्स चेंजेस एंड सोसाइटी भी है जो चेंज करता है. एज आई सेड कि अगर आप इंडिया में रहते हो तो राइट्स माइट बी डिफरेंट, एंड अगर आप वेस्ट में जाते हो बिकॉज देयर कल्चर इज़ डिफरेंट, देयर सोसाइटी इज़ डिफरेंट, तो उनके जो राइट्स होंगे वो डिफरेंट होंगे. If we see it by an example कि 200 years ago anyone अगर वो कोई ये बोलता है कि women should have right to vote, तो उस टाइम वो बहुत ही strange sound करता बिकॉज वो सोसाइटी में उस टाइम नहीं माना जाता था एंड दैट टाइम्स वर डिफरेंट. बट नाउ अगर हम लोग देखते हैं कि सऊदी अरेबिया में वुमेन को वोट देने का दे डोंट हैव द राइट टू वोट, तो इट अपीयर्स स्ट्रेंज बिकॉज द टाइम्स हैव चेंज्ड. But it's their own society, whatever they want to give to their women वो देंगे. तो that is why society to society and as per time also rights start वो change होते रहते हैं, वो develop होते रहते हैं the way the society is developing. When the socially recognized claims are written into law, they acquire real force. Otherwise, they remain merely as natural or moral rights. So, जब कोई एक जो सोसाइटी है वो सोशली रिकग्नाइज करती है एक क्लेम को एंड दे आर रिटन इनटू अ लॉ, तो उनको एक लॉ के रूप में लिख दिया जाता है. देन दे एक्वायर रियल फोर्स बिकॉज देन दे हैव द
पावर इन देम। अगर कोई भी एक रूल है, अगर उसको एज लॉ बना दिया जाए, देन इट हैज़ अ रियल पावर, बिकॉज एवरीबडी हैज़ टू देन अबाइड दैट, बिकॉज दैट बिकम्स अ लॉ। अदरवाइज वो एक अगर वो रूल नहीं है या अगर वो लॉ नहीं है अभी तक, तो इट बिकम्स मेयरली एज नेचुरल और मॉरल राइट्स जो है हमारे बहुत सारे, कि आप इफ़ यू गो टू टेम्पल, आपको अपनी स्लीपर्स बाहर रखने चाहिए। अगर आपको मंदिर में जाना है तो आपको इस तरीके से अपना सर कवर करना है या वट एवर, दीज आर मॉरल थिंग्स दैट यू डू। ये लॉ नहीं है कि आपको सर कवर ही करना है या आपको स्लीपर्स बाहर रखनी है। तो ये सारी चीज़ें वो मॉरल राइट्स हैं या मॉरल आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो मानते हैं। The prisoners in Guantanamo Bay had a moral claim not to be tortured or humiliated, but they could not go to anyone to enforce this claim. Now, जो prisoners थे Guantanamo Bay में, जो हम लोगों ने जो डिस्कस किया था अपने फर्स्ट सेशन में, उनके पास ये मॉरल क्लेम था नॉट टू बी टॉर्चर्ड और ह्यूमिलिएट नहीं किया जाए उनको, बट वो किसी के पास नहीं जा सकते थे कि वो इस क्लेम को इन्फोर्स करा सकें। दैट इज़ वाई दे हैड टू गो थ्रू, जो टॉर्चर उन पे किया गया वो दे हैड टू गो थ्रू दैट, बिकॉज दे वर नोबडी टू प्ले हीट टू देयर क्लेम्स, जो भी वो क्लेम करना चाहते थे वो। When law recognizes some claims, they become enforceable. We can then demand their application. जब कोई law recognize करता है किसी claim को, then वो enforceable बन जाते हैं कि उनको enforce किया जा सकता है या इनको enforce किया जाता है। Then we can demand कि उनकी application हो. Then everybody has to abide by them because they have now become a law. When fellow citizens or the government do not respect these rights, we call it violation or infringement of our rights. So अगर जो rights हैं उनको अगर हमारे fellow citizen और जो government है वो respect नहीं करती अगर हमारे rights को, तो हम लोग उसको बोलते हैं violation of rights या फिर infringement of our rights, कि वो लोग violation कर रहे हैं या फिर infringement हो रहा है हमारे rights का। In such circumstances, citizen can approach court to protect their rights. So, if we want to call any claim a right, it has to have these three qualities. So, अगर कोई violate कर रहा है जो rights है या infringement हो रहा है, ऐसे circumstances में जो citizens हैं they can go to court को approach कर सकते हैं कि उनके rights को protect किया जाए। If we want to call any claim जो है उसको अगर हम एक right बुलाना चाहते हैं, तो it has to have these three qualities जो हैं वो होनी चाहिए। Rights are reasonable claims of person recognized by society and sanctioned by law. तो rights वो चीज़ हैं जो reasonable claim होते हैं, they have to be reasonable first of all, and then recognized by society, तो society को recognize करना चाहिए उन reasonable claims को, and वो फिर उन सारे रीजनेबल क्लेम को जो सोसाइटी रिकग्नाइज करती उनको लॉ सैंक्शन करे, देन दे बिकम अ इन्फोर्सेबल राइट। तो इस तरीके से ये तीनों चीज़ें जो हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी राइट के लिए। सो दैट्स ऑल वी हैव डिस्कस इन दिस सेशन अबाउट व्हाट आर राइट्स। राइट्स क्या होते हैं उनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया इस सेशन में। थैंक यू।